My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, today we have come to meditate on the cross आज हम क्रूस पर मनन करने आए हैं and enjoy the glory which Jesus Christ has purchased for us through his sacrifice on the cross. और उस आनंद का जो यीशु ने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा हमारे लिए लिया है, आनंद लेने आए हैं। Today I'm going to take you to Gethsemane, आज मैं आपको गेत्सेमनी में ले जाऊंगा, where Jesus travailed to do the will of the Father, जहां प्रभु यीशु पिता की इच्छा पूरी करने के लिए दुख में, where he was strengthened to go to the cross. जहां क्रूस पर जाने के उन्हें बलवंत किया गया। Let's read Luke 22:39 to 46. आइए हम पढ़ें लूका 22:39 से वचन 46 तक। It says, Jesus went out as usual to the Mount of Olives. यह लिखा है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया And his disciples followed him. और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। On reaching the place, he said to them, Pray that you will not fall into temptation. उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न He पड़ो। withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down, and prayed. और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे पर गया और घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा, Father, if you are willing, take this cup away from me. कि यदि हे पिता तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, Yet not my will, but yours be done. तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। An angel appeared from heaven to him and strengthened him. तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाय भूमि पर गिर रहा था। When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep and exhausted from sorrow. तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास जाकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। Why are you sleeping? He asked them. और उनसे कहा, क्यों सोते हो? Get up and pray so that you will not fall into temptation. उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। This is what happened in the Garden of Gethsemane. यह गेत्सेमनी के बगीचे में हुआ। Let's go to verse 39 of Luke 22. आइए हम लूका 22 के वचन 39 में जाएं। It says, Jesus went as usual to the Mount of Olives. यहाँ लिखा है, यीशु अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। It was a place of prayer, वह तो प्रार्थना का स्थान a था, place of dedication. एक समर्पण का स्थान था। And Hebrews 5:7 says, इब्रानी 5:7 कहता है, he cried and prayed with a loud voice, वो बड़ी तेज आवाज के साथ रोकर प्रार्थना with किया। much tears. बहुत ही ज्यादा आंसुओं के साथ उसने प्रार्थनाएं की। In the Mount of Olives, you find the tombs of many prophets who lived before Jesus. जैतून पहाड़ पर आप यीशु से पहले आए अनेक भविष्यवक्ताओं की कब्रों को पाएंगे। They were prophesying about God's plan for Jerusalem, वे परमेश्वर की योजना यरूशलेम के लिए बता रहे थे for the people of Israel. और इस्राएल के लोगों के लिए भी। Many of them were stoned and killed for the sake of the Almighty God, परमेश्वर के निमित्त उनमें से अनेक को पथरवाह करके मारा गया, because the people never received them. क्योंकि लोगों ने उन्हें कभी नहीं स्वीकारा। It is that place, the Mount of Olives, which has their graves, where Jesus would go to offer himself as a sacrifice to in prayer. और यही वह स्थान है जहां उनकी कब्रों के बीच में प्रभु यीशु मसीह जा करके परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। And secondly, it's the place where Jesus taught his disciples the Lord's Prayer. और यही वह स्थान है जहां प्रभु यीशु ने अपने चेलों को प्रभु की प्रार्थना भी सिखाई। He taught them to say, Our Father in heaven, उसने उन्हें सिखाया ये कहे कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, that thy will be done on earth as it is in heaven. तेरी इच्छा पृथ्वी पर वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। Because he remembered he would have to come there and pray someday saying, Not my will, let thy will be done in my life, Lord. क्योंकि एक दिन उसको मालूम था कि आकर के ये प्रार्थना करनी होगी, प्रभु कि मेरी नहीं पर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी। Even though it be a cross, yet I submit to your will, Lord. चाहे वो क्रूस ही क्यों न हो प्रभु, लेकिन मैं आपकी इच्छा के सामने समर्पित It हूं। is
There, the Mount of Olives, where Jesus taught the disciples to pray for God's will to be established in their life. इसी जैतून के पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि उनके जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी हो। That's why, at the last moment of his life, he came there to pray, to surrender his life to God. इसलिए अपने जीवन के अंतिम समय में वो वहां पर प्रार्थना करने और अपना जीवन परमेश्वर को सौंपने के लिए आया। And thirdly, it's the place where Jesus had cried for Jerusalem to be saved. और तीसरी बात, ये वही स्थान है जहां से यीशु ने रो करके यरूशलेम की रक्षा के लिए प्रार्थना की। Yes, he went to the Mount of Olives, where he had prophesied over what would happen to the city of Jerusalem. हाँ, जैतून पहाड़ पर वो गया जहां से उसने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम शहर के साथ क्या होने वाला है, Where he cried for the city. जहां उस नगर के लिए वो रोया था। In Luke 19:41-44, लुका 19:41 से 44 the में Bible says, Jesus approached Jerusalem and saw the city and wept over it. वहाँ लिखा है कि जब प्रभु यीशु उस शहर के पास पहुंचा तो शहर को देख करके उनके लिए रोया। He said, Jerusalem, if even you had known on this day what would bring you peace. और उसने कहा कि हाय यरूशलेम, काश तूने जाना होता कि तेरे अंदर क्या शांति लेकर The आए। days will come when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you on every side. काश तू ये जानती कि एक दिन आएगा जब तेरे शत्रु तेरे चारों तरफ दमदमा बांधेंगे और तेरे खिलाफ जो है व्यू रचना करेंगे, They will dash you to the ground, और वे तुझे मिट्टी में मिला देंगे, you and the children, तुझे और तेरी संतानों को, because you did not recognize the time of God's coming to you. क्योंकि तूने परमेश्वर के आने के समय को तेरे लिए नहीं पहचाना है। My friend, even today, God is crying for us. मित्रों, आज भी परमेश्वर हमारे लिए रो रहा है। If we have not recognized God's coming to us. अगर हमने परमेश्वर के हमारे जीवन में आने को नहीं पहचाना। It was in the Mount of Olives, Jesus cried for the city, prophesying what would happen to it, because the people of Jerusalem never recognized God's leading in their life. क्योंकि यरूशलेम के लोगों ने अपने जीवन में कभी परमेश्वर की अगुवाई को नहीं पहचाना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है जैतून पर्वत पर जा करके उस शहर के लिए विलाप करते हैं, रोते हैं। It was in that place he went to cry, to offer himself as a sacrifice for all humanity, to recognize God and to be transformed to become God's children. और यही वो स्थान था जहां प्रभु यीशु मसीह जा करके रो रो करके प्रार्थना करता है ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो पश्चाताप करें और वो परमेश्वर की संतान होने के लिए वापस उसके पास आ जाएं। And fourthly, the Mount of Olives was the place where Jesus began his journey into Jerusalem as the King of Kings. और चौथी बात, वहीं जैतून पर्वत से ही यीशु राजाओं के राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किए थे। In Luke 19:28-40, लुका 19:28 से 40 वचन में Jesus knew that one day he would walk the streets of Jerusalem carrying the cross and people crying, "The King of the Jews, look at him." यीशु जानता था कि एक दिन जो है यरूशलेम की गलियों में वो क्रूस को लेकर के चलेगा और लोग उसे देख करके ये कहेंगे, देखो यही है यहूदियों का वो राजा। Look at what has happened to him. They would cry, mocking him. और उसका मजाक उड़ा करके वो कहेंगे, देखो उसके साथ क्या हुआ। But yet he would be the King of Kings with all the power to forgive their sins. लेकिन तो भी वो राजाओं का राजा होगा उनके पापों को क्षमा करने की शक्ति के साथ। So before he was given up to be crucified, इसलिए क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले Jesus took a triumphal entry into Jerusalem from the Mount of Olives. प्रभु यीशु मसीह जैतून के पर्वत से उस यरूशलेम में राजाओं के रूप में विजयी प्रवेश करते हैं। As he sat on the colt, people brought their cloaks, their clothes, and put it on the colt for Jesus to travel on it. और जब यीशु गधी के बच्चे पर सवार होकर के जा रहा था तो लोग अपने कपड़ों को और अन्य चीजों को ला करके उसके रास्ते में They बिछा all रहे थे। shouted, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. और चिल्लाकर कहते थे, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। Peace in heaven and glory in the highest." पृथ्वी पर शांति और आकाश में ईश्वर की महिमा हो। And they honored him. और उन्होंने उसका आदर किया। Yes,
It is the place where the journey of the King of Kings, who died for the whole humanity to be saved and become his children through that, would begin. हाँ, यही वो स्थान था जहां से उस राजाओं के राजा की यात्रा जो है शुरू हुई कि उस पर विश्वास करने के द्वारा लोग जो है परमेश्वर की संतान बन जाएं। What happened in the Garden of Gethsemane? गेतसमनी के बगीचे में क्या हुआ था? In Matthew 26:36 to 38. मत्ती 26 से 38 वचन में, As Jesus went to the Garden of Gethsemane, जब प्रभु यीशु गेतसमनी के बगीचे में पहुंचा, he said to his disciples, उसने अपने चेलों से कहा, sit here while I go over there and pray. यहाँ रुको जब तक मैं आगे जाकर के प्रार्थना करूं। He took Peter and the two sons of Zebedee along with him. और वो अपने साथ पतरस और जब्दी के दो बेटों को लेकर And गया he began to be sorrowful and troubled. और वो बहुत ज्यादा व्याकुल होने लगा। He said, my soul is exceedingly overwhelmed with sorrow, with the fear of death. और उसने कहा कि मृत्यु के भय के कारण से मेरा हृदय जो बहुत ही ज्यादा विकल और व्याकुल है। Stay here and keep watch with me. यहाँ रुको और मेरे साथ जागते रहो। He knew the cross was so near, वो जानता था क्रूस अत्यंत निकट है and the fear of death was churning within him and made him sorrowful and fully troubled. और मृत्यु के भय के कारण से उसका हृदय जो था बैठा जा रहा था और वो अत्यंत व्याकुल हो गया था। He said, this is the hour of the power of darkness. उसने कहा यही तो उस अंधकार के सामर्थ की घड़ी है। Gethsemane means oil press. गेतसमनी का मतलब तेल निकालने की जगह है। Yes, it is there they would produce the olive oil. यही वो स्थान था जहां वे जैतून का तेल निकालते It थे। was an oil mill. वो तो मानो एक तेल का मिल था। They had huge stone olive presses. और वहां पत्थरों की बड़ी हौदियां बनी थी जहां पर जैतून को कुचला जाता था। They would bring the olive fruit and put them inside. वे जैतून के फलों को ला करके उसके अंदर डाल देते। There would be huge stone boulders which would crush the olive fruits. और वहां पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे जो उन जैतून के फलों को कुचलते थे And suck the oil out. और उससे तेल को बाहर निकाल देते And they would be poured और वो बाहर बहता था for people to live by that olive oil, eating it. कि लोग उस तेल के भोजन के द्वारा से जीवित रहे। My friend, the body of Jesus Christ also was crushed there, squeezed there. मेरे प्रिय मित्रों, यीशु ख्रिस्त का देह भी वहां पर कुचला गया था। Yes, he took his disciples for them to sorrow with him and pray for his comfort and strength, but they slept away. हाँ, वो अपने चेलों को वहां लेकर के गया ताकि वो उसके साथ दुख मनाए, उसके लिए प्रार्थना करे, लेकिन वो सो गए। Pray that I will not enter into temptation also. प्रार्थना करो कि मैं परीक्षा में ना पड़ूं, But they slept away. लेकिन वे सो गए। He had to bear it all by himself. उसे अकेले ही सब सहना पड़ा Because only Jesus was chosen to be squeezed, for his blood to be squeezed out of him for the salvation of the whole humanity. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ही अकेले चुना गया कि पूरी मानवता के लिए उसकी जो देह है और उसका लहू जो है निचोड़ा जाए। God has chosen you also to be a vessel of life for others. परमेश्वर ने आपको भी चुना है कि आप दूसरों के लिए जीवन का एक पात्र बने। You may also go through the experience of Gethsemane. आप भी गतसमनी के शायद ऐसे ही अनुभव से गुजरे हों, Because Luke 9:23 says, क्योंकि लूका 9:23 कहता है, everybody who is the disciple of Jesus has to deny himself or herself कि हर एक यीशु के चेले को अपने आप का इनकार करना होगा and carry his cross, her cross daily. और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके उसके पीछे चलना होगा, Squeezed, मोड़ा जाना होगा, crushed कुचला जाना होगा, for fragrant oil of life to flow to others. ताकि हमसे जो है दूसरों के जीवन में एक खुशबूदार तेल जो है बहने पाए And thus follow Jesus. और ऐसे यीशु के हम पीछे चले। Jesus said in Matthew 9:38, मत्ती 9:38 में यीशु ने कहा, please pray that the Lord of the harvest will send laborers. प्रार्थना करो कि जो फसल का स्वामी है वो और भी मजदूरों को भेजे। He needs you to be in Gethsemane, me to be in Gethsemane for the sake of the people.
वो चाहता है कि लोगों की खातिर आप जो है वो गतसमनी में पाए जाए। Let us not sleep like the disciples of Jesus. आइए यीशु के चेलों के समान हम सो न जाएं, Let us not get into temptation like the disciples of Jesus, और यीशु के चेलों के समान हम भी परीक्षा में न पड़ जाएं, because they did not travail with Jesus. One man denied Jesus. क्योंकि वो यीशु के साथ दुख नहीं उठाए, वरन एक ने तो उसका इनकार कर दिया, One man betrayed Jesus. एक ने यीशु के साथ विश्वासघात किया, Others ran away and hid themselves. दूसरे भाग करके अपने आप को छुपा लिए, One man never even believed in the resurrection of Jesus. और एक तो यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास ही नहीं करता The था। faith was gone. भाग्य ने उन्हें छोड़ा Fear held them. और भय ने उन्हें जकड़ My लिया। friend, मेरे मित्र, Jesus says, यीशु कहता है, pray with me. मेरे साथ प्रार्थना करो, Go through Gethsemane with me मेरे साथ गतसमनी में होकर चलो, for you to be glorified with the power of God in your life, ताकि तुम परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ महिमा को to पाओ, save millions from destruction. कि लाखों को विनाश से बचा सको। My friend, that's why we have the Jesus Calls prayer tower. मेरे मित्र, इसी कारण से हमने यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन रखे हैं। 500,000 calls pour in every month. प्रति माह 50 लाख कॉल्स यहाँ आते With हैं, people crying, somebody help me. जहाँ लोग रोते हैं कि कोई मेरी सहायता करे, There are people troubled, crying with them with the love of God, bringing them out of their sorrow. और वहाँ लोग परमेश्वर के प्रेम के साथ उनके लिए रोते और उन्हें हर एक दुख से बाहर निकालते। And 100 prayer towers. और 100 प्रार्थना भवन है, And people coming and crying. लोग वहाँ आकर के रोते हैं, And the prayer warriors also crying with them, like being squeezed in Gethsemane. और प्रार्थना योद्धा भी उनके साथ ऐसे रोते हैं मानो वो गतसमनी में रगड़े गए हों, कुचले गए हों। Thank God for these prayer intercessors of Jesus Christ. यीशु बुलाता है कि प्रार्थना मध्यस्थों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। Again, we have the National Prayer Tower crying for the nation of India 24 hours. और उसके साथ ही हमारा राष्ट्रीय प्रार्थना भवन 24 घंटे भारत के राष्ट्र के लिए प्रार्थना और Travailing before God परमेश्वर के सामने आंसू बहाता for है, His will to come upon the nation, ताकि इस देश में ईश्वर की इच्छा पूरी come हो, upon each state, हर एक राज्य पर वो पूरी हो, come upon the governor. और हमारे शासन पर वो पूरी हो। My friend, the Israel Prayer Tower, मेरे प्रिय मित्रों, वो इस्राएल प्रार्थना to भवन pray for the nations of the world, for God's will to come upon every nation. जहाँ पर पूरे संसार के देशों के लिए प्रार्थना होती है कि ईश्वर की इच्छा हर एक में पूरी हो, Travailing along with Jesus, who is travailing for the salvation of each person. प्रभु यीशु के साथ बड़े दुख के साथ प्रार्थना, जो पूरे संसार के लिए दुख के साथ प्रार्थना करते हैं। Thank you for being a part of it. इसका एक हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। You are part of staying with Jesus in Gethsemane. आप यीशु के साथ गतसमनी में जागने वाले का हिस्सा हैं। In Luke 22:40-46, लुका 22 और उसके वचन 40 से वचन 46 में हम इस बात को पाते हैं। we see the description of what happened as Jesus was crying unto God, being squeezed in Gethsemane. और ये वर्णन मिलता है कि जब अपने दुख से यीशु पीड़ित होकर के रो रहा था तो वहां पर गतसमनी में क्या हुआ। My father had this vision of what happened in Gethsemane. गतसमनी में क्या हुआ उसका दर्शन मेरे पिताजी को मिला था। As Jesus was crying to God, saying, if it be your will, please take away this cup of death from me. जब प्रभु यीशु ये कहते हुए रो रहा था कि प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो मृत्यु के इस कटोरे को मुझसे दूर कर दे। In Deuteronomy 32:40, the Bible says, व्यवस्थावरण 32 वचन 40 में बाइबल कहती है, God is alive always, there is no death for him. परमेश्वर सदा जीवित रहता है, उसके लिए कोई मृत्यु नहीं है। Jesus was God in flesh. प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर थे, He could never die. वो कभी मर नहीं सकता था, He could never taste death. वो कभी मृत्यु को चख नहीं सकता था। So the battle to go into death was tormenting him. इसलिए इस मृत्यु के संघर्ष में जाना उसे परेशान कर रहा था। But he had to go through death so that he can save humanity from the death caused by sin. लेकिन उसे मृत्यु से होकर के जाना था ताकि उस मानवता को जो पाप में पड़ी हो वो बचा ले। So there was a great struggle. इसलिए वहां पर एक भयंकर संघर्ष था। And as Jesus said, और जैसे यीशु ने कहा, this is the hour of the power of darkness. ये अंधकार की शक्ति का वह समय है। Satan was by his side.
शैतान उसके बगल में था, and he was taunting him, वो उसका ठट्ठा उड़ा रहा था, saying, Jesus will never go to the cross. ये कहते यीशु कभी क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, He is so full of fear. वो तो इतना ज्यादा भयभीत है, He is afraid to die. वो मरने से डर रहा है, He will deny वो God. ईश्वर का इनकार करेगा। And as he denies God, saying, I cannot go to the cross, और जब वो ये कहते हुए ईश्वर का इनकार करेगा कि मैं क्रूस पर नहीं चढ़ सकता, sin can never be overcome. तो पाप पर कभी जय नहीं हो पाएगी, I will not be overcome. तो मुझ पर कोई जय नहीं पाएगा, I will live. मैं जीवित रहूंगा My power shall reign supreme और मेरी ही सामर्थ जो है सर्वोच्च राज्य करेगी over all human beings. संपूर्ण मानव प्राणियों के ऊपर। Because in John 14:30, Jesus had said, He is the prince of the world. The devil is the prince of the world. जैसे कि यूहन्ना 14:30 में ईश्वर ने कहा कि शैतान जो है वो इस संसार का राजकुमार है। Because man had sinned and committed his life, her life, into the hands of Satan, who caused them to sin. क्योंकि मनुष्य ने पाप किया और हर एक ने अपने प्राणों को शैतान के हाथों में रख दिया। The only way for man to come out of the clutches of the devil was for Jesus to give his life on the cross and destroy the powers of death and Satan on the cross. और शैतान के बंधन से मनुष्य प्राणी को बाहर निकलने और बचने का एकमात्र तरीका यही था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर पाप और शैतान को कुचलकर उस पर जय प्राप्त करे। So Satan said, look at Jesus, he is full of fear, he will not go to the इसलिए cross. शैतान कहता है कि यीशु को देखो, वो तो बहुत डर गया है, वो क्रूस पर नहीं So चढ़ेगा, nothing can bind me, nothing can overcome me anymore. तो कोई भी चीज मुझे बांध नहीं सकती, कोई मुझ पर जयवंत नहीं हो सकती। And verse 43 of Luke 22 says, an angel appeared from heaven to strengthen Jesus. और लुका 22 का वचन 43 कहता है कि स्वर्ग से एक दूत यीशु को बल देने के लिए प्रकट हुआ, But Jesus would not let that angel comfort him. लेकिन यीशु ने उसे ढाढ़स देने से रोक दिया And he was in more anguish, और भी ज्यादा वो व्याकुल हो गया prayed earnestly. और प्रार्थना करने लगा Sweat came out as drops of blood from his body. और उसके शरीर से खून जो है पसीने की तरह बहने लगा। He was so full of anxiety. वो बहुत ही ज्यादा व्यग्र था And the power of the fear of death squeezed blood out of his body as sweat. और मृत्यु के भय ने उसके शरीर से मानो खून को पसीने के रूप में बहाया। And as he shed that blood from his body, और जब उसने अपने शरीर से उस लहू को बहाया, Hebrews 9:14 says, तो इब्रानी 9:14 कहता है, the Holy Spirit came, पवित्र आत्मा आया, the eternal Spirit, वह अनंत आत्मा, and he said, Jesus, और उसने यीशु से कहा, look at the future. उस भविष्य को देख, Because that's what the Holy Spirit does according to John 16:13. क्योंकि यूहन्ना 16:13 के अनुसार पवित्र आत्मा यही करता He है, shows you the future. वो आपको भविष्य दिखाता है। He said, if Lord Jesus, if you surrender to God's will to the cross now, He will raise you up and give you authority over every soul of every person. प्रभु यीशु, अगर तू अभी क्रूस के लिए परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाए तो वो तो हर एक व्यक्ति के हर एक प्राण के ऊपर तुझे अधिकार देगा। Surrender to God. परमेश्वर के सामने समर्पण कर दे। And Jesus said, Father, और यीशु ने कहा, पिताजी, not my will, मेरी इच्छा नहीं let thy will be done. पर तेरी इच्छा पूरी हो, Let thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। And as Jesus said this, और जब यीशु ने ये कहा, as Jesus surrendered to the will of God, even though it was a cross, जो भी ईश्वर की इच्छा उसके लिए क्रूस थी, लेकिन जब उसने उसे स्वीकारा, Satan fell on the floor. शैतान धरती पर गिर पड़ा And he said, I am undone. और कहा, मैं तो बर्बाद हुआ, I am undone. मैं तो बर्बाद हो गया, I am finished. मैं पूरी तरह खत्म हो गया। Yes, the blood that came out as sweat as Jesus surrendered to God's will defeated the power of Satan in this world. क्योंकि जब प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू उस पसीने के रूप में बाहर निकला तो उसने शैतान उसकी ताकत को हरा दिया। Power of surrender to the cross. क्रूस के लिए समर्पण करने की सामर्थ है ये। The power of surrender to God's will even though it was a cross.
परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पण की सामर्थ, जो भी ये तो एक क्रूस की मृत्यु थी। And Jesus rose up. और यीशु उठ खड़ा हुआ And after that, he had no fear. और उसके बाद उसके अंदर कोई भय न था। He faced the huge crowds that came to arrest him. और उसे गिरफ्तार करने के लिए आई बड़ी भीड़ का उसने सामना किया He said, I am Jesus. और कहा, मैं ही यीशु हूँ, Let my disciples go. मेरे चेलों को जाने दो। When Peter cut the ear of the servant of the high priest, he healed him. और जब पतरस ने उस महायाजक के सेवक के कान को काटा, उसने उसे चंगा किया। And when his disciple Judas came to kiss him and betray him, he said, Friend, wherefore और have जब you उसका चेला यहूदा उसको चुंबन दे करके पकड़वाने के लिए आया, तो उसने कहा, मेरे मित्र, तू किस काम के लिए आया है? He confounded the high priest who levied false accusations against him. और जिस महायाजक ने उसके खिलाफ में गलत आरोप लगाया, उसका उसने सामना किया। Nobody could overcome him. कोई भी उस पर जय नहीं पा पाया। And Pilate could not overcome him. पिलातुस उस पर जयवंत नहीं हुआ। Herod could not overcome him. हेरोद उसके ऊपर में जयवंत नहीं हुआ। The whips of the Roman soldiers could not overcome him. रोमी सैनिकों के कोड़े उस पर जयवंत नहीं हो पाए। And no nails on the cross could inflict pain on him. और क्रूस पर उसके शरीर में जो कीलें ठोकी गई थी, उसको कोई दर्द नहीं पहुंचा पाए। He was the King of Kings and the Lord of Lords after Gethsemane. गेत्सेमनी के बाद वह तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हो गया। He never opened his mouth. उसने अपना मुंह कभी न खोला, He never cried. न ही कभी रोया, He never pleaded for mercy from men. और मनुष्यों से उसने दया की भीख नहीं मांगी। But he overcame every sin of every person, enduring the sacrifice. और वो हर एक व्यक्ति के हर एक पाप को उस बलिदान के द्वारा से अपने ऊपर उठा लिया। And triumphed over the powers of darkness and sin and destroyed them on the cross through his और अपने sufferings. बलिदान के द्वारा उसने क्रूस के ऊपर शैतान और अंधकार और पाप की शक्ति पर जय पाई। Today, he is the King of Kings and the Lord of Lords over every sin and the death caused by sin and the demons and the devils and Satan. और आज वो हर एक पाप और मृत्यु और शैतान और आत्माओं के ऊपर में राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Every knee bows at the name of Jesus. यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुकता है। Even today, my friends, और आज भी मेरे प्रिय मित्रों, the Lord Jesus Christ gives you the power to overcome everything of the flesh and to submit to God's will because of Gethsemane. और उस गतसमनी के कारण से ही आज परमेश्वर जो है आपको शरीर की हर एक इच्छा और हर एक पाप के ऊपर जयवंत होने में सहायता करता है। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल न हो। Today, just surrender to Jesus. बस आज यीशु को आप समर्पण करें। Just say, Lord, as you did in Gethsemane, बस यही कहें जैसे प्रभु आपने गतसमनी में समर्पण I किया। say, let thy will be done in my life. मैं भी कहता हूँ मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। You are my Father. आप मेरे पिता हैं You know how to lead me. और आप जानते हैं कैसे मेरी अगुवाई कर रहे Through हैं। all the sufferings from Gethsemane to the grave, you were more than a conqueror, Lord Jesus. हर एक दुखों के बाद गतसमनी से लेकर के कब्र तक प्रभु तू जयवंत से बढ़कर है। Give me also the same strength and power in my spirit. मेरी आत्मा में तू मुझे भी वही बल और सामर्थ्य दे। Help me to overcome and save millions for your kingdom. मेरी सहायता करके मैं जयवंत होकर के लाखों को बचा सकूं। Father, पिताजी, we surrender. हम समर्पण करते हैं। I surrender. मैं समर्पण करता हूँ। Let thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो, Let thy will be done केवल तेरी इच्छा पूरी हो in my life मेरे जीवन में, for your glory. तेरी महिमा के लिए। Even though it be a cross, चाहे वो मेरे लिए क्रूस क्यों न हो, yet I surrender. तो भी मैं समर्पण करता हूँ, Because I know the glory that will come following that will be much greater. क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके बाद आने वाली महिमा और भी महान होगी। All that we need is to have you with us always through this obedience. हमें बस केवल इस आज्ञाकारिता के द्वारा आप ही चाहिए। We love you, Jesus. प्रभु यीशु, हम आपसे प्रेम करते We हैं surrender और हम समर्पण करते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में। आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।